السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ حفاظت کرے، آمین۔ میں آج دنیا اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، لہٰذا آپ پوری توجہ سے سنیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، یہ دنیا جس میں میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا ایک ایسا بازار ہے، دنیا ایک ایسا بازار ہے جو بہت جلد بند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی محبت اگر دل میں بس گئی تو آدمی دنیا کی محبت کو لے کر غرق بن جاتا ہے، دنیا کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے جتنی سال ہم لوگ دنیا میں رہنا ہے، بڑے چوکنے ہو کر رہنا ہے، بلکہ رہنا نہیں ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آخرت کی زندگی لامحدود جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر، بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی اتنی بڑی زندگی کا پورا دار و مدار اسی دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر یہ مختصر زندگی ہم نے اللہ کی مان لیا، دین پر چلے، تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ اگر یہاں پر ہم نے اپنی خواہشات والی زندگی کو اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ، ہم سب اس دنیا کے دھوکے سے بچنا ہے، اور آخرت اصل چیز ہے، اصل جگہ ہے، وہاں کی تیاری یہیں پر کرنی ہے۔ فرمایا، یہ دنیا ایسی جادوگر ہے جو علماء کے دلوں پر بھی جادو کر دیتی ہے۔ آج دنیا کے پیچھے سارے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ والے ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک آدمی بڑا کالا کلوٹا تھا، اتنا بد شکل، بد صورت کہ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ کسی نے اپنی لڑکی کو اس کے نکاح میں دینا گوارا نہیں کیا، بیچارہ وہ کوارا ایسے ہی رہ گیا۔ تھا دیہات کا، جنگل کے اندر جا کر لکڑیاں کاٹ کر گاؤں میں لا کر بیچتا تھا، اس کا یہ دھندا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جنگل میں وہ جا کر لکڑیوں کو کاٹ رہا تھا، تو اچانک بازو میں سے آواز آئی، تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ تو پریشان ہو گیا، اس کو دیکھنے لگا، تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوں، تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ اب یہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ چلو، کئی سالوں کے بعد میری شادی ہونے والی ہے، اور وہ بھی اتنی حسین و جمیل کے ساتھ، بڑا خوش ہوا۔ جلدی جلدی جو ہے اس کو لے کر گاؤں میں آیا، قاضی صاحب کے پاس، اور آ کر کہا کہ قاضی صاحب، یہ عورت اپنی مرضی سے میرے نکاح میں آنا چاہتی ہے، لہٰذا آپ ہماری شادی کر دیں، نکاح پڑھوا دیں۔ اب قاضی صاحب نے دیکھا، یہ اتنا کالا کلوٹا بد شکل، اور یہ اتنی خوبصورت دلربا اس کا چہرہ۔ قاضی صاحب کی نیت بدل گئی، کہا کہ وہ بے وقوف، تجھے دکھتا نہیں ہے، تو کہاں اور یہ کہاں؟
तू जो है इससे कैसे शादी कर सकेगा, ये तेरे लायक नहीं है, ये तो मेरे लायक है, इसलिए मैं ही इसके साथ शादी कर लूँगा, निकाह कर लूँगा, तो खामोशी से यहाँ चला जा। अब दोनों में गड़बड़ हुई। वो कह रहा है कि कहाँ का इंसाफ है, ये औरत अपनी मर्जी से मेरे निकाह में आना चाहती है, मैं आपके पास निकाह पढ़ाने के लिए आया था, तो आप कहते हैं कि खुद कर लेंगे। अब दोनों में गड़बड़ हुई, तो ये दोनों मिलकर फैसला किया कि चलो हम इस गांव के जो बड़े मुखिया होते हैं, हाकिम होते हैं, उनके पास चलते हैं। अब ये दोनों और वो औरत तीनों मिलकर उस हाकिम के पास गए, जाकर सारा मसला रखा। तो उन्होंने देखा, इस औरत को देखकर उनकी नीयत भी बदल गई। वो कहने लगे, अरे बेवकूफ़ो, तुम अकल के अंधे हो, ये कहाँ और तुम कहाँ, तुम जैसे फ़कीरों के निकाह में कैसे आएगी, लिहाजा मैं मालदार हूँ, ये मेरे लायक है, तुम खामोशी से चले जाओ, मैं इसके साथ निकाह कर लूँगा। और भी मसला कठिन हो गया, गड़बड़ हो गई। तो उसके बाद इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि चलो बादशाह के पास जाते हैं, वो इंसाफ करेंगे। बादशाह के सामने सारा माजरा रखा। तो बादशाह ने देखा इन तीनों को, काजी साहब को और वो देहाती आदमी को और इस हाकिम को, और उसके बाद इस औरत को देखा, इतनी खूबसूरत, दिलरुबा, हसीन और जमील। बादशाह की नीयत भी बदल गई। बादशाह कहने लगा, वो बेवकूफ़ो, ये तुम्हारे झोपड़ियों में रहने के कहाँ काबिल है, ये तो मेरे महल में रहने के काबिल है, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। आपस में जो है गड़बड़ होने लगी। अब तक वो हसीन औरत खामोश थी, अब कहने लगी, तुम आपस में लड़ो नहीं, मेरी एक बात सुन लो, वो ये है कि मैं यहाँ से अब दौड़ने लगूंगी, भागने लगूंगी, जो सबसे पहले मुझे पकड़ लेगा, छू लेगा, मैं उसके निकाह में आ जाऊंगी, उससे शादी कर लूंगी। अब ये सब जो है तैयार हो गए। क्यों? उसकी मोहब्बत दिल में घर कर गई, उसका हुस्न ने इनको मजबूर कर दिया। अब वो दौड़ रही है, भाग रही है, और ये उसके पीछे भाग रहे हैं। फरमाया, आज तक इतनी दौड़ नहीं लगाई उसकी मोहब्बत में। बादशाह भी दौड़ रहा है, हाकिम भी दौड़ रहा है, काजी भी दौड़ रहे हैं, और ये देहाती आदमी भी दौड़ रहा है। अब दौड़ते रहे ताकि उसको सबसे पहले पकड़ लें, उसको छू लें। बादशाह कभी आज तक इतनी दौड़ नहीं दौड़ा था। तो दौड़ते दौड़ते एक हिचकी उसको लगी, प्यास की शिद्दत ने उसको पकड़ा, तो नीचे गिरा, तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। उसके बाद थोड़ी दूर दौड़ने के बाद अब जो है वो हाकिम साहब का नंबर आया। वो भी जो है प्यास की शिद्दत से ज़बान बाहर आई, नीचे गिरकर वो भी तड़प तड़प कर मर गए। अब ये काजी और ये देहाती आदमी दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते थोड़ी दूर दौड़ने के बाद अब काजी साहब का नंबर भी आता है। वो भी जो है प्यास की शिद्दत से बेताब हो जाते हैं, नीचे गिरकर तड़प तड़प कर जान बहक हो जाते हैं। यह आदमी थोड़ा ताकतवर था, थोड़ा दूर तक भागता रहा, लेकिन वो उसको भी नहीं मिली। आखिर उसको भी जो हिचकी आती है, वो भी ज़मीन पर गिरकर तड़प तड़प कर जान दे देता है। उसके बाद वो औरत पीछे मुड़कर कहती है कि वो बेवकूफ़ों, मैं जो है कोई औरत नहीं हूँ, मैं तो दुनिया हूँ। जो मेरे पीछे आएगा, भागेगा, मर जाएगा, मैं उसको मिलने वाली नहीं हूँ। आज तक मैं किसी को नहीं मिली, क़यामत तक किसी को नहीं मिलूंगी। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले फरमाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आज दुनिया के पीछे जिनके पास इल्म नहीं है वो भी भाग रहे हैं। जिससे मुराद वो करिए का आदमी, वो भी जो है भाग रहे हैं, ऐसे लोग भी। और इल्म का तबका भी दुनिया के पीछे भाग रहा है। वो काजी साहब से मुराद इल्म का तबका है, वो भी भाग रहा है दुनिया के पीछे। और हुक्मरान, सियासत के लोग,
वो भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। बादशाह, सल्तनत करने वाले, ये भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि हर तबका दुनिया के पीछे भाग रहा है, लेकिन किसी को ये दुनिया मिली नहीं। मर जाएंगे उसके पीछे भागते भागते, लेकिन ये दुनिया किसी को मिलने वाली नहीं है। इसीलिए फरमाया, जो दीन पर चलेगा, दीन को अपनाएगा, मुकद्दर की दुनिया पैरों पर जो है आकर गिरेगी। दुनिया के पीछे भागेंगे तो मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए हम लोग यूं बनना है कि हम इस दुनिया के पीछे न भागें। हमको तो आखिरत की तैयारी करना है। ये दुनिया की ज़िंदगी जैसे भी गुजरे गुजर जाएगी, चाहे खुशी में गुजरे, चाहे फिक्रमंदी में गुजरे, तवंगरी में गुजरे, गरीबी में गुजरे, गुजर तो जाना ही है। ये फ़ानी ज़िंदगी फ़ना होना है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली वो असली ज़िंदगी है। उसके लिए यहीं पर हम लोग तैयारी करना है। लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को इस दुनिया के धोखे से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के पीछे भागने से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि रद्द रिबा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आगे अपने दोस्तों को भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।